મહેમાન સાદી અબ્દુલ સત્તારભાઈ હાજર નથી. મહેમાન સાદી અબ્દુલ સત્તારભાઈ 75%. મહેમાન મોહમ્મદ શહરાન અબ્દુલ કયુમભાઈ નેક્સ્ટ 74.71%. મહેમાન મોહમ્મદ શહરાન અબ્દુલ કયુમભાઈ 74.71%. મહેમાન મોહમ્મદ અનસ મોહમ્મદ ઇકબાલ 72.37%. પ્રમુખ સાહેબ ઘેર ઇનામ બહુ લઈ ગયા છોકરો છોકરી કરીને. આ બી પ્રમુખ સાહેબનો બેઠો છે. મહેમાન મોહમ્મદ અનસ મોહમ્મદ ઇકબાલ 72.37%. મહેમાન અલ સિફા સોએબભાઈ 72.14%. મહેમાન અલ સિફા સોએબભાઈ 72.14%. મહેમાન ફાતેમા હારૂનભાઈ 70%. મહેમાન ફાતેમા હારૂનભાઈ 70%. શુક્રિયા જાફરભાઈ ફારૂકભાઈ. ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓને હવે આપણે ઇનામ આપશું. ધોરણ 12માં ટોટલ 9 વિદ્યાર્થીઓ છે. ધોરણ 12માં આર્ટ્સમાં જે ફર્સ્ટ છે સાચોરા ઉજમાબેન સબ્બીરભાઈ, એને ઇનામ માટે હું પ્રમુખ સાહેબને વિનંતી કરીશ ઇકબાલભાઈને કે એના હાથે ઇનામ આપે. આ ઉજમા જે બેટી છે એના પપ્પા જે મને જે કાગળ મળ્યું છે પ્રમાણે પપ્પા જન્નત નસીબ થયેલા છે. અલ્લાહ એમની રૂહને એમની મગફિરત ફરમાવે. અને એ બેટી યુપીએસસીની તૈયારી કરી રહી છે. એટલે આપણા માટે બહુ ગર્વની વાત છે કે સાચોરા ઉજમાબેન યુપીએસસીની તૈયારી કરી રહી છે અને 85.28% છે આર્ટ્સમાં. અને સીલ આબિદભાઈ કલોડા સીલ આપશે એમને, જે આર્ટ્સમાં પ્રથમ છે. વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં જે પ્રથમ છે માસ્ટર નુમા અલ્તાફભાઈ. તોસીફભાઈ ડીસા તરફથી 500 રૂપિયા સાચોરા ઉજમાબેનને. થેન્ક યુ તોસીફભાઈ. સાયન્સમાં જે ફર્સ્ટ છે માસ્ટર નુમા અલ્તાફભાઈ, તેમને બશીરભાઈ ઇનામ આપશે. એના 62% છે સાયન્સમાં ફર્સ્ટ છે, એને શિલ્ડ આપશે આબિદભાઈ કલોલવાળા. મહેમાન નુમા ઇમરાનભાઈ અમારી બેટી છે, એમને ઇરફાનભાઈ માસ્ટર જે કોમર્સમાં પ્રથમ છે અને ઇરફાનભાઈ માસ્ટર ઇનામ આપશે જે કોમર્સમાં પ્રથમ છે. એમને બી શિલ્ડ આપશે આબિદભાઈ કલોલવાળા. ખૂબ ખૂબ મુબારક બધી બેટીઓને. આઈ થિંક આ ત્રણે ફર્સ્ટ નંબરમાં દીકરીઓ જ છે. બીજા હવે હું આબિદભાઈ કલોલ વિનંતી કરીશ કે બીજા ઇનામ બી એમને એ આપશે. બીજા જે ઇનામ છે આબિદભાઈ કલોલવાળા. મહેમાન મુનીસા બાનુ ઇદ્રીસભાઈ 85% છે આર્ટ્સમાં. મહેમાન મુનીસા બાનુ ઇદ્રીસભાઈ 85% આર્ટ્સમાં. મહેમાન સફિયા ઇનાયતુલ્લાભાઈ 75.85% આર્ટ્સમાં. આબિદભાઈ એમને ઇનામ આપશે. સફિયા નુમા એ તો આવી ગયો. મહેમાન મારિયા બાનુ સાદિકભાઈ. થેન્ક યુ આબિદભાઈ. હું આ ઇરફાનભાઈ માસ્ટરને વિનંતી કરીશ કે આગળના 2 ઇનામ આપે. મહેમાન મારિયા બાનુ સાદિકભાઈ 71.57%. મહેમાન મારિયા બાનુ સાદિકભાઈ 71.57%. ઇરફાનભાઈ ઇનામ આપશે. નેક્સ્ટ છે મહેમાન લુબાના બાનુ અબ્દુલ કયુમભાઈ, એ બી 71.57% છે. ઇરફાનભાઈ ઇનામ આપશે. નેક્સ્ટ થેન્ક યુ ઇરફાન. આ ઇનામ પછી હનીફભાઈ પ્રમુખ સાહેબને વિનંતી છે કે આગળના 2 ઇનામ આપશે. સાચોરા હુજેફા જાકીરભાઈ 70.28%. મહેમાન ગુસરા હારૂનભાઈ 69.66%. 69.66%. આ કોનું?
मेमन बुसरा अरुण भाई, मेमन बुसरा अरुण भाई, નવાઈની વાત છે કે ધોરણભરમાં બધી જે બી જે નવે નવું ઇનામ છે બધી દીકરીઓ જ લઈ ગઈ છે. થેન્ક યુ પ્રમુખ સાહેબ. ધોરણ 12નું ઇનામ વિતરણ અહીંયા પૂરું થાય છે. ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન બધી દીકરીઓને. ઇનામ હવે આ થોડું પ્રોગ્રામ આપણે આગળ વધારી છે, ધીરે ધીરે આગળ જઈ રહ્યા છીએ. मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोग ही है हमारी महफिल की शान. ऐसी महफिल को आन बान शान, ऐसी महफिल के आन बान शान जमीयत उलमा हिंद के बनासकांठा के सेक्रेटरी जनाब अतीकुर रहमान भाई कुरैशी से गुजारिश करता हूँ इस महफिल को अपनी बातों से शानदार बनाए. वेलकम अतीक भाई. એના પછી આપણે એક છેલ્લો ઇનામ વિતરણ છે, પછી ઇરફાનભાઈની મોગલ સાહેબની સ્પીચ આવશે. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. मेरे मुअज़्ज़ज़ और काबिल क़द्र नौजवान सदर मोहतरम इकबाल भाई मेमन साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत हज़रात, दीनी खिदमत अंजाम देने वाले शख्सियत, मेरे नौजवान साथी और बुज़ुर्गों, माओ बहनों और मेरे नौजवान बच्चों बच्चियाँ, आज का ये एक सुनहरी मौका 2 तारीख को शुरू होकर 3 तारीख में कदम रख रहा है और ये वो वक्त आ चुका है कि शायद मैं देख रहा हूँ कि अपने हाथों में प्लेट लेकर सहरी का वक्त भी शुरू हो चुका है. बावजूद हम आज इस अच्छे मौके पे इन बच्चों को दुआएं देने के लिए और शुभकामनाओं देने के लिए यहाँ हम जमा हुए हैं. अभी एक ऐसे ही प्रोग्राम में सौराष्ट्र में जाना हुआ और उस प्रोग्राम में बच्चों का ही एनुअल फंक्शन था और उसमें हम जब पहुँचे तो हमें बिठा दिया गया और जाने के बाद वो प्रोग्राम में हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, बड़ी बड़ी बच्चियाँ 12 दौरान की, उन्होंने स्टेज पे डांस किया और करते हुए बड़ी खुशियों के साथ में उनकी जो टीचर हजरात थी और उनके जो पेरेंट्स थे वो तालियां बजाया करते थे. बड़ी हैरत हुई. मुसलमानों का ही प्रोग्राम था. देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस माशरे की हालत जो है वो इस कदर गिरी हुई है और इस कदर तालियां बजा रही हैं और एनुअल फंक्शन कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं कि हम एजुकेशन का प्रोग्राम दे रहे हैं. लेकिन वो एजुकेशन का प्रोग्राम देखकर इतनी हैरत भी हुई, दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई. हमारा वक्त आया बोलने का. अब हम क्या बोलते, हमें बुला के बिठा दिया गया था और कहा कि अब आप मुखातिब हो इन बच्चों से और कुछ कहें. मैंने ये ज़रूर कहा कि आज इस वक्त ये मौके पे जबकि नाजुक वक्त चल रहा है, हम हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, हिजाब के लिए हम झुंझुना रहे हैं, हिजाब के लिए हम मेमोरेंडम दे रहे हैं और आज हमारी ये छोटी बच्चियां जो समझ नहीं रही उनसे डांस करवाया जा रहा है और हम तालियों पे तालियां बजाए जा रहे हैं. आज इस बात से खुशी हुई कि ये मेमन बिरादरी ने इस चीज़ का लिहाज करके अपनी बच्चियों को निकाब में लाकर इनामों को तकसीम किया गया. और सबसे अफजल ज़्यादा अगर हमें खुशी हुई हो तो उस बात की खुशी हुई कि एक बच्ची PhD हो गई है, एक बच्ची आलिमा हुई है, एक बच्ची है साइंस के अंदर आई हुई है और हमारे बच्चे भी आलिम होकर, हाफिज होकर, कारी होकर इस स्टेज के
स्टेज पे आके इनाम हासिल कर रहे हैं, हकीकत में मुबारक के काबिल हैं। माशरे में अगर ऐसे लोग पैदा हो गए, ऐसे समाज पैदा हो गया, वो समाज इंशाअल्लाह बरकतों के साथ में उन बच्चों को तालीमों में आगे करेगा। आपको एक ज़रा सा एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि ये माशरे की ये हालात जब सौराष्ट्र में हमने देखे तो उसके बाद हम उनकी तारीफ़ भी हमने की। मैंने कहा कि अगर यही बच्चे अपने टैलेंट में इतने आगे हैं, नाच रहे हैं, एक एक गानों पर नाच रहे थे, एक एक गानों पे आगे चल रहे थे, और यही बच्चों ने अगर अपने टैलेंट को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों से अगर बयान किया होता, इन्हीं बच्चों ने अगर इस्लामी तालीमात को सामने रखते हुए अगर बयान किया होता तो ये एक नया रंग होता और हम दूसरों को भी देख सकते। उसके बाद में हमारी माँ और बहनों की निगाहों को नीची करना पड़ा। दोस्तों, मौलाना वहीदुद्दीन खान जो अर रिसाला उर्दू एक रिसाला मैगज़ीन निकालते हैं मंथली, उसमें वो लिखते हैं कि मैं रोज़ाना सुबह मॉर्निंग वॉक में जब जाया करता था दिल्ली, और मेरे साथ में IK गुजराल साहब साथ में रहा करते थे, हम चलते हुए मॉर्निंग वॉक करते थे, तो एक सरदार जो था भीख मांगता हुआ उसने हाथ बढ़ाया और कहा कि मुझे कुछ भीख दे दें। वो सरदार जो था, उन्होंने जब IK गुजराल साहब के साथ हाथ बढ़ाया, उन्होंने मना किया और अपने जेब में से एक कार्ड निकाला और निकाल के कहा कि ये कार्ड रखिए और मेरे दफ्तर में आ जाना 11 बजे। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने जब से देखा बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे भीख मंगे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने इस भीख मंगे को काट दिया और कहा कि 11 बजे मेरे दफ्तर में आना, क्या वजह है? उन्होंने बताया, क्या मौलाना आप भी तशरीफ़ लाइए। 11 बजे जब मौलाना उनके दफ्तर में पहुंचे, वही शख्स जो भीख मांगता हुआ सरदार था, वो सरदार जब वहां पहुंचा और उसने कार्ड पहुंचाया, और IK गुजराल साहब के दफ्तर में जब कार्ड आया, उन्होंने देखा तो बुलाया कि बुलाइए उनके अंदर। जब आया तो कहा कि ये लेटर लीजिए, आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर है और मेरे दफ्तर में आप काम करिए। उनके ताज्जुब हुआ मौलाना के, बात समझ में नहीं आई, भीख मांग रहा था, आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया और अपॉइंटमेंट लेटर देकर आपने इसको यहाँ सर्विस दे दी। उन्होंने बड़ी तगड़ी बात की थी और इस बात को आपको लोगों को गौर करना है। उन्होंने इस बात से कहा कि आज मेरा एक सरदार का लड़का अगर भीख मांगता हो गया, कल पूरी कौम भीख मांगती हो जाएगी। अगर आज हमारी कौम में से एक बच्ची नाश्ती हो गई, पूरी कौम की बच्ची नाश्ती हो जाएंगी। हमें ज़रूरत इस बात की है, हम एक मिसाल कायम करें, एक मॉडल कायम करें, और इससे हम ये कायम करके ये बताएंगे ये बच्चियाँ जो है नकाब कर अंदर आन कर हमारी तालीमी मयार को बढ़ा रही हैं। जिस तरह से अभी डॉक्टर सलीम भाई मेमन साहब ने बताया कि जिस वक्त हमें इनाम दिया करते थे उस वक्त तादाद शायद 100 की थी, 125 की हुई, 150 की हुई, लेकिन उस तादाद के साथ में हमारा मयार जो है तालीमी मयार, दीनी मयार के साथ में आगे बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी कौमों को और ऐसी जमातों को, ऐसे लोगों को जमा करें, ऐसे लोगों को साथ में रखें और रख कर हम दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम दे। वो हमारी बरकत जो है वो हमारे उलमाओं की बरकत है। यहाँ उलमाओं की मौजूदगी है, मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब की मेहनतें हैं, आप लोग उनकी सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ों को रंग लाती है। मैं ज़्यादा नहीं कहकर आप लोगों को खूब दुआओं के साथ में इन बच्चों को दुआ दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियों से नवाजता रहे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। ये कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया કુરેશી સાહેબ। હવે આપણે સન્માન સમારોહનો છેલ્લો સ્ટેજ છે પૂરો કરવા જઈ રહ્યા છે। એને ડિપ્લોમા ડિગ્રીવાળાનું સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે। ટોટલ 18 સ્ટુડન્ટ છે એમાં। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ આનંદની વાત છે કે 2 MBBS ડૉક્ટર મળી રહ્યા છે આપણા સમાજને, આપણા પાંગરું મેમણ સમાજને। તો એક દીકરી બી જે PhD કરી રહી છે, એટલે વિવિધ ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહ્યા છે આપણે। એક દીકરો આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં બી સારું પરફોર્મન્સ કરીને ઇનામ લઈ જઈ રહ્યા છે, બહુ સરસ મજાની વાત છે। તો હવે આપણે ઇનામ વિતરણ માટે
જે દીકરીનો ઇનામ વિતરણ, જે છેલ્લો ઇનામ વિતરણ જેની શરૂઆત કરીએ છીએ. સૌપ્રથમ ડૉક્ટર ખુદેજા અલ્તાફભાઈ માસ્ટર, જે MBBS ડિગ્રી મળીને ડૉક્ટર બની રહ્યા છે, એને ઇનામ માટે હું હાજી હનીફભાઈ પ્રમુખ સાહેબની વિનંતી કરું કે તેમના હાથે ઇનામ આપે. અલ્તાફભાઈ માસ્ટરની દીકરી છે, ઇરફાનભાઈ માસ્ટરની ભત્રીજી થાય. પ્રમુખ સાહેબ ઇનામ આપશે. સેકન્ડ ઇનામ માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે કે આપણા પૂર્વ પ્રમુખ, અલ્લાહ એમને જન્નત નસીબ કરે, અયુબ કાકાના પોતરા ડૉક્ટર દાનિશ રફીક ડૉક્ટર બની રહ્યા છે. ખૂબ ખુશીની વાત છે. ખૂબ ખૂબ મુબારક અયુબ કાકાને, જે જ્યાં બી હશે એ બી એમને બી એક પ્રાઉડ કરતા હશે. પપ્પા રફીકભાઈને ખૂબ ખૂબ મુબારક, તમારી દાદીને બી મુબારક, મેરુનભાઈને બી ખૂબ ખૂબ મુબારક. ખૂબ તરીકી કરો હવે અભિનંદન. ઇકબાલભાઈ પ્રમુખ સાહેબ એમનું આપશે અને શિલ્ડ આબિદભાઈ આપશે. શુક્રિયા નીફભાઈ. એક દીકરી PhD કરી રહી છે, જે મહેમાન સાલિયાબાનુ ફજલ મોહમ્મદભાઈ, એને હાજી સુખભાઈ મેસરાવાળા ઇનામ આપશે અને શિલ્ડ આબિદભાઈ આપશે. ડૉક્ટર લુકમાન, એક મહેમાન સાલિયાબાનુ ફજલ મોહમ્મદભાઈ, જે PhD કરી છે દીકરી, એમને ઇનામ ઈસુભાઈ મેસરા સાહેબ આપશે. એમના વાલિદ સાહેબ છે. ખૂબ ખૂબ મુબારક. ડૉક્ટર લુકમાન મોહમ્મદ સફીભાઈ, જે આયુર્વેદ ડાયટિશિયનનો એક પ્રોગ્રામ, એક એમને અલગથી એક કોર્સ કર્યો છે. ખૂબ ખૂબ મુબારક ડૉક્ટર લુકમાન. એમને ઇનામ આબિદભાઈ જ આપશે અને શિલ્ડ બી આબિદભાઈ જ આપશે. ખરેખર છે. બે શબ્દો સાહેબ તમે કહો એના માટે. તું આટલી ઉંમરમાં ઇનામ લઈ જાય, ખૂબ ખૂબ મુબારક ડૉક્ટર. 40 પછી ઇજામા સ્પેશિયાલિસ્ટ. વેલકમ વેલકમ. અહીંયા ઊભા જ છે ઇનામ આપવા માટે અમે તો. નેક્સ્ટ છે માસ્ટર મોહમ્મદ કેફ અલ્તાફભાઈ માસ્ટર મોહમ્મદ કેફ અલ્તાફભાઈ, જે અલ્તાફભાઈના દીકરા છે. એને બાસિરભાઈ, શુક્રિયા આબિદભાઈ, વસીરભાઈ એમને ઇનામ આપશે. BTech કોમ્પ્યુટર સાયન્સમાં કરેલું છે. માસ્ટર મોહમ્મદ કેફ અલ્તાફભાઈ, શિલ્ડ આબિદભાઈ આપશે. નેક્સ્ટ છે મહેમાન મોહમ્મદ કાસિફ અબ્દુલ કયુમભાઈ, BTech કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં. ઇરફાનભાઈ માસ્ટર ઇનામ આપશે અને શિલ્ડ આબિદભાઈ આપશે. નેક્સ્ટ છે મહેમાન મિફતા અકીલભાઈ, માસ્ટર ઓફ કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન. શિલ્ડ આબિદભાઈ આપશે અને ઇનામ રફીકભાઈ આપશે, સેક્રેટરી રફીકભાઈ આપશે. મહેમાન મિફતા અકીલભાઈ, ડૉક્ટર લુકમાનની ભત્રીજી થાય ને અકીલની ડોટર થાય, આઈ થિંક. નેક્સ્ટ છે માસ્ટર મોહમ્મદ અઝીમ રફીકભાઈ, જે આઈ થિંક લંડનમાં માસ્ટર ઓફ સાયન્સ કર્યું છે અને આપણા પૂર્વ પ્રમુખ રફીકભાઈના સન છે. તો શિલ્ડ રફીકભાઈ અરે આબિદભાઈ આપશે અને ઇનામ યુનુસભાઈ મંસૂરી સાહેબ આપશે. માસ્ટર મોહમ્મદ અઝીમ રફીકભાઈ નીકળી ગયા, વાંધો નહીં. આબિદભાઈ જ આપી દે બંને વસ્તુ. આમને લંડનમાં માસ્ટર ઓફ સાયન્સની ડિગ્રી હાંસલ કરી છે. ખૂબ ખૂબ મુબારક ડૉક્ટર સાહેબ. નેક્સ્ટ છે માસ્ટર ફિજા શોએબભાઈ, MSc સાયન્સ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં કર્યું છે. એને નદીમભાઈ પીપળાને ઇનામ આપશે અને શિલ્ડ આબિદભાઈ આપશે. માસ્ટર ફિજા શોએબભાઈ, આ બી ઇરફાનભાઈ માસ્ટરની ભત્રીજી થાય, આઈ થિંક. માસ્ટર ફેમિલી બહુ ઇનામ લઈ ગઈ છે ભાઈ. નદીમભાઈ પીપળાણી આપશે. મહેમાન અરમાન સબ્બીરભાઈ, MCom, ડૉક્ટર રફીકભાઈ માસ્ટર આપશે ઇનામ અને શિલ્ડ આબિદભાઈ આપશે. મહેમાન અરમાન સબ્બીરભાઈ, MCom. મહેમાન રિઝવાન મોહમ્મદભાઈ, B.Ed. મહેમાન અરમાન સબ્બીરભાઈ, ડૉક્ટર રફીકભાઈ સાહેબ ઇનામ આપશે એમને. મહેમાન અરમાન સબ્બીરભાઈ, રફીકભાઈ માસ્ટર સાહેબ ઇનામ આપશે. ડૉક્ટર રિઝવાન મોહમ્મદભાઈ, B.Ed. ડૉક્ટર સલીમભાઈ ઇનામ આપશે. શિલ્ડ આબિદભાઈ આપશે. હવે જે દીકરીને બોલાવ્યો જોઈ રહ્યો છે ઇનામ માટે, એના માટે બે શબ્દો કહેવા છે મારે. કે એક તો એક મેરિડ છે,
એ છે ડૉક્ટર સોરી આપણા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટની દીકરી થાય સાનિયા બેટી, ડૉક્ટર આબિદભાઈની વાઇફ છે ને ડૉક્ટર સાદિકભાઈની પુત્રવધુ છે. ખૂબ પ્રાઉડ થાય છે. એને બોલાવતા પહેલાં જે સાસુ સસરાએ નોંધ લેવા જેવી છે ઇનામને બોલાવતા પહેલાં કે એ જ્યારે એની પરીક્ષા ચાલતી હતી ત્યારે એ લગભગ એની મમ્મીના ઘરે હતી, પણ એની કંઈ સાસુ એટલે કે મુન્નીબેનની તબિયત ખરાબ થઈ તો એને ત્યાં મોકલી સાસરે. અને સાસરેમાં રહીને જે સાસુ સસરાએ જે કુરબાની આપી છે એ ખરેખર નોંધને પાત્ર છે. રમજાન માટે બી એ લોકો જમવાનું બહારથી હોટલ માંગીને એને તૈયારીમાં લગાવતા કે જમવાની હોટલથી માંગીને તૈયારી એટલી પુત્રવધુને તૈયારી કરાવતા હતા. એક દીકરીને જેમ એની સંભાળ રાખી છે. અને રમજાનનો ડ્રાઈવર સાથે ગાડી ફાળવીને એમને પરીક્ષા આપવા મોકલતા હતા. બહુ ગર્વ જેવી વાત છે. એટલે આપણા સાસુ સસરાએ નોંધ લેવા જેવી વાત છે કે આ ખરેખર પુત્રવધુને કેવી રીતે એ લોકોએ આગળ લાવીને એને કેવી રીતે પરીક્ષા અપાઈ. અને યુનિવર્સિટી ફર્સ્ટ છે એ બેચલર ઓફ ફિઝિયોથેરાપીમાં યુનિવર્સિટી ફર્સ્ટ છે. માસ્ટર સાનિયા ઇરફાનભાઈ, એમને ઇનામ આપવા માટે હું ઇકબાલ મુગલ સરને વિનંતી કરું કે એનો હાથે ઇનામ આપે. બેટા માસ્ટર સોનિયા ઇરફાનભાઈ, વેલકમ. વેરી ગુડ સાહેબ, બહુ પ્રાઉડ જેવી વાત છે. ફુવા ના થાય આમ તો, ફુવા બી થાય ને સસરા બી થાય. મહેમાન મોહમ્મદ અહેમાન મોહમ્મદ હુસેનભાઈ, ઇન્ટરમીડિયા CA. એને ચાર્ટર્ડ, ખરેખર બહુ પ્રાઉડની વાત છે કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટમાં એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપી છે. આપણા મહેમાન સમાજ માટે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ બહુ મોટી વાત છે. મહેમાન મોહમ્મદ અયાન મોહમ્મદ હુસેનભાઈ, શિલ્ડ આબિદભાઈ આપશે. માસ્ટર યાસીર મોહમ્મદ મુનાફનો શિલ્ડ રહી ગયો છે કોઈ શરત ચૂકતી, એટલે શિલ્ડ પાછળથી મોકલવામાં આવશે. આ મોહમ્મદ અયાન હુસેન બંને તમે આપી દો સાહેબ. માસ્ટર યાસીર મોહમ્મદ મુનાફભાઈ, બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ. ઇનામ આપવા માટે મારું જ નામ લખેલું છે તો મારા હાથે જ આપી દઈશ પછી. ઇરફાને જે નોંધ કરી પ્રમાણે માસ્ટર ફેમિલીમાં ગ્રેજ્યુએટમાં 6 એવોર્ડ ગયા છે. બહુ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન માસ્ટર ફેમિલીને. માસ્ટર યાસીર મોહમ્મદ ઇનાફ. પછી મહેમાન અરશીન નિસાર, અમારી બેટી છે. ઇરફાનભાઈ મુગલ સાહેબ ઇનામ આપશે. મહેમાન અરશીન નિસાર BComમાં છે સાહેબ, એ દીકરી ડોટર મેરી છે. નેક્સ્ટ છે મહેમાન મોહમ્મદ કામિલ અબ્દુલ કઈમભાઈ, BComમાં. ઈસુફભાઈ સાહેબ ઇનામ આપશે એમને. ઈસુફભાઈ આપણા શીલ આબિદભાઈ આપ્યું અરશીનને. શુક્રિયા આબિદભાઈ, શુક્રિયા મુગલ સાહેબ. મહેમદ કામિલ અબ્દુલ કઈમભાઈ BComમાં. ઈસુભાઈ મેસાવાળા ઇનામ એમના હાથે ઇનામ આપશે અને શીલ આબિદભાઈ કલોલવાળા આપશે. નેક્સ્ટ માસ્ટર ફેમિલી અગેન, શું વાત છે. માસ્ટર ફલક સોએબભાઈ, BComમાં. મંસૂરી સાહેબ ઇનામ આપશે. સાહેબ નથી, બશીરભાઈ આપ્યા. BCom છે એને બી. છોરિયા અબ્દુલ સમદ મોહમ્મદ અમીન, BAમાં. બંને ભૂતપૂર્વ કાઉન્સિલના હોદ્દેદારો બંને ઇનામ આપશે. એક શીલ્ડ આપશે, એક ઇનામ આપશે. છોરિયા અબ્દુલ સમદ મોહમ્મદ અમીન, BAમાં. આ રીતે આપણે અહીંયા આ ઇનામ વિતરણનો પ્રોગ્રામ અહીંયા પૂરો થાય છે. જે બી પૂરો થાય છે, જે ઇનામ જે આપવાનો એ સ્ટેજ બધો પૂરો થાય છે. હવે ઇરફાન મુગલ સાહેબને વિનંતી કરું કે પાર્ટ 2માં આવે જે રીતે હવે ટાઈમને થોડું માન આપીને જે 2-4 શબ્દો કહેવા હોય. એક તો સાહેબ કે આ તમે લેટ કરો છો, એ મહેમાન લોકો લેટ કેમ કરે છે, કદાચ એ શબ્દ કહેશે મને એવું લાગે છે. એ જ અગેન સાહેબ શનિવાર ટુ સેટરડે ટુ સન્ડે. ના ના સાહેબ મને વાંધો નથી બધા, જોકે મજબૂત ખાલી લાગે. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आधा घंटे का स्पीच था, लेकिन डेफिनेटली 10 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूंगा। मैं देख पा रहा हूँ कि करीबन 70% चेयर्स जो है वो खाली है। बाकी जो लोग बैठे हुए हैं इनके लिए मैं बिल्कुल जो है वो चाहूँगा कि अगर वो सुनने के लिए बैठे हैं तो हम थोड़ी 10 मिनट बात कर लेंगे।
तो सबसे पहले तो तमाम स्टूडेंट्स जिनको इनाम मिले हैं सबको दिल से मुबारकबाद। आखिरी जो मैंने देखा, आखिरी से मेरा मतलब है 10th के बाद जो मैंने देखा, तो उसमें मुझे 80% जो है वो लड़कियां देखने मिली, जो कि बिल्कुल ताज्जुब नहीं है। मैं जितनी भी जगह पे जाता हूँ हर जगह पे यही सीन मैं देखता हूँ कि गर्ल्स जो है वो हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे है। सो बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ पे क्विक जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके साथ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। हालांकि जैसा मैंने बोला वक्त कम है तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर हिंदुस्तान की बात करूँ तो करीबन 7.5 लाख स्टूडेंट जो हैं वो मेडिकल में हर साल एडमिशन लेते हैं। 90,000 MBBS हर साल पैदा होते हैं, करीबन 595 एलोपैथी कॉलेजेस हैं, और 53,000 डॉक्टर्स बनते हैं 733 आयुष कॉलेज से। अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए और मैं बॉटम लाइन पे आऊं तो पिछले 20 साल में जितने डॉक्टर बने हैं, 20 साल में जो डॉक्टर बने, इसका मतलब कि जिनकी उम्र 40-45 से ज़्यादा नहीं है, उनके अगर मैं तादाद गिनता हूं तो करीबन 30 लाख डॉक्टर जो है वो पिछले 20 साल में पैदा हुए हैं। मतलब कि हर 80 फैमिली पे एक डॉक्टर है, हर 80 फैमिली के ऊपर एक डॉक्टर है। मेरा मैसेज समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप साइंस रख रहे हो, बायोलॉजी है आपके पास, आपको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, दिल से आप चाहते हो, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर बनिए, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस के बाद डॉक्टर के अलावा दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। दुनिया भर की बहुत सारी जो है वो फील्ड्स है जहाँ पे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अब यहाँ पर दूसरा जो फील्ड है जिसमें हमारा क्रेज रहता है वो है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी जिन्हें कहवाए। गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी यहाँ पे आपको एक डेटा मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। गवर्नमेंट जॉब के भी बारे में बताऊंगा कि अगर आपका मन है, आपका दिल है, आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट के लिए फिट है, तो डेफिनेटली मेहनत कीजिए, बहुत बेहतरीन जॉब है। लेकिन इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो दुनिया खत्म हो जाती है। इंडिया में जो टोटल गवर्नमेंट जॉब है उसकी तादाद है 2 करोड़ 15 लाख। 1 करोड़ 80 लाख स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है और 35 लाख जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की। 2 करोड़ 15 लाख को अगर आप परसेंटेज निकालोगे 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो वो 1.5% से ज्यादा नहीं आता। मतलब कि अगर सरकार अपनी सारी खाली भरी हुई पोस्ट सारी भी भर दे तो वो मुल्क के 1.5% लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। ये फिगर मैं बता रहा हूं साल 2021 के बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन के आर्टिकल का। वही मैगजीन में बताया गया है कि इंडिया के अंदर कॉरपोरेट सेक्टर की जो जॉब है वो है करीबन 14 करोड़, मतलब कि 10% टोटल पॉपुलेशन के सामने। सरकारी नौकरी जो है वो है 1.5%, कॉरपोरेट सेक्टर है 10%। और ये मैं 2 साल पहले का फिगर आपको दे रहा हूं, लास्ट 2 साल में ये और फिगर बढ़ा है। इसका मतलब कि कॉरपोरेट जो है ना वो आने वाले हिंदुस्तान के आने वाले जॉब मार्केट का मुस्तकबिल है। अब यहाँ पे मैं एक फनी वे में एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी 2 दिन पहले ना मैं अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहा था। रास्ते में हाईवे होटल पे हम रुके चाय वाय पीने के लिए, तो मेरे साथ में मेरा कजिन भाई था, वो वॉशरूम चला गया। अब वॉशरूम से आने के बाद वो हंस रहा था, वॉशरूम के अंदर से निकल के वो हंस रहा था। मुझे लगा पता नहीं यार ऐसा क्या है कि वॉशरूम में जाने के बाद क्यों इतना जोर से हंस रहा है। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोला पता नहीं यार लोग क्या क्या वॉशरूम में लिखते हैं। मैं बोला क्या लिखा था? बोले यार मैं वॉशरूम में गया, वहां पे लिखा था दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अभी भी इधर ही बैठा है, दुनिया पूरी चांद पे पहुंच गई। तो हम लोग हंस रहे थे, लेकिन बाद में मुझे एक बात का एहसास हुआ कि साला ये तो अपनी कौम के साथ जुड़ता हुआ सेंटेंस है। मैं हमेशा अपनी स्पीच में बोलता हूं कि दुनिया बुलेट ट्रेन में भाग रही है और हम अभी भी लोकल मेमू ट्रेन का इंतजार करके प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। मेरी बात एक याद रखना, जो कौमें जमाने के साथ नहीं चलती ना, उन्होंने हमेशा दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्पेन का हिस्ट्री 10 मिनट में बताता आपको। हम बोल रहे हैं ना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 700 साल राज किया है, स्पेन में मुसलमानों ने 800 साल राज किया है, हमसे 100 साल ज्यादा। लेकिन आज की तारीख में स्पेन में शायद 1% भी मुसलमान नहीं है। वो 800 साल की जो हिस्ट्री थी उसको किस तरह खत्म किया गया, जैसे मैंने बताया, अगर थोड़ा वक्त होता तो डिटेल में बताता, अभी सिर्फ शॉर्ट में 3 पॉइंट बता देता। उनको खत्म करने के पीछे 3 पॉइंट्स लगाए गए थे। पॉइंट नंबर 1, हमारी तरक्की रोक दी गई। जहां पे यूरोप में प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, जहां पे नई नई खोजें नहीं हो रही थी, वहां पे मुसलमान अपनी सत्ता बचाने के लिए सिर्फ तलवार से लड़ रहे थे। दूसरी चीज क्या करने में आई स्पेन में, जो मुसलमान क्रिश्चियन में से कन्वर्ट हुए थे
और जो मुसलमान सऊदी अरब से ओरिजिनल मुस्लिम वहाँ पे माइग्रेट किए थे, उनके बीच में दंगे करवा दिए गए। जो बचे हुए क्रिश्चियन थे उन्होंने उनके बीच में दंगे करवा दिए। और तीसरी चीज़ जो उनके बीच में करने में आई वो ये थी कि मुसलमानों की जो तारीख थी, जो हिस्ट्री था, उस हिस्ट्री को उन्होंने खराब करना शुरू कर दिया। अब ये तीनों चीज़ों को इंडिया के आज के जो जमाना चल रहा है उसके साथ कंपेयर करना, आरएसएस यही तीनों चीज़ें कर रहा है। हमारी हिस्ट्री खराब हो रही है, हमारी तरक्की को रोक दिया गया है, हमें आपस में लड़वाया जा रहा है। 700 साल का पूरा वो था, वो खत्म हो गया। तो मेरी बात याद रखिएगा कि ज़माने के साथ चलिए। ज़माने की रिक्वायरमेंट क्या है? ज़माने की रिक्वायरमेंट सिर्फ सरकारी नौकरी या डॉक्टर बनने तक महदूद नहीं है। आज अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के स्टूडेंट के लिए डिमांड नंबर 1 मेडिकल नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिमांड नंबर 1 डॉक्टर बनना या मेडिकल साइंस जो है वो नहीं है। आज के ज़माने में साइंस के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट अगर कोई है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसको वो कहा जाता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास AI का कोई एक सब्जेक्ट में भी एक्सपर्टाइज है तो आपके लिए सीधा 80,000 से 1 लाख की जॉब मिलेगी आपको। मैं गूगल के लिए ट्रेनिंग करता हूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी। गूगल का रिक्रूटमेंट जो है उसको मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने उनको पूछा आप क्या देखते हो, आप कितने परसेंटेज देखते हो? वो कहते हैं सर हम कोई परसेंटेज नहीं देखते, हम मिनिमम देखते ग्रेजुएट हो गया, भले 45% या 40% से हुआ। हम उनको पूछते हैं कि तेरे पास स्किल कौन सा है? उसने कहा मैं कोडिंग का एक्सपर्ट हूं, तो आ जाओ जॉब में चलो। मेरे पास क्लाउड कंप्यूटिंग में जानता हूं, तेरे लिए जॉब अवेलेबल है। मैं पाइथन लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूं, आ जाओ जॉब के अंदर। मेरे को SAP आता है, मोस्ट वेलकम। मेरे को क्विक बुक आता है, मोस्ट वेलकम। कहने का मतलब आज का दौर स्किल का दौर है और IT की जो स्किल है वो सबसे ज्यादा साइंस के बाद डिमांड में है। आप खुद सोचिए, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर 10% जॉब दे रहा है और अगर आप बीकॉम कर किया हुआ है, आपने 90% 90% बीकॉम में आपके मार्क्स है, आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो अपना सर्टिफिकेट लेके, गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट लेके। दूसरा एक स्टूडेंट आएगा जिसके पास 55% मार्क है, लेकिन उसको पूछा जाएगा तेरे को टैली आता है? वो बोला हाँ मेरे को आता है। उसको पूछेगा जाएगा तेरे को एडवांस एक्सेल आता है? हाँ मुझे आता है। तुझे क्विक बुक आता है? तुझे SAP का फीको वर्जन आता है? मुझे आता है। तो सर वो 55% वाला जो है ना, वो 90% वाले से ज्यादा काम का है उस कंपनी के लिए। तो आज का दौर जो है, फिर से याद रखिएगा, स्किल का दौर है। आज वो दौर नहीं है कि हम सिर्फ परसेंटेज पे चले जाएं। आपको अच्छे परसेंटेज के साथ में स्किल सीखना जरूरी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया, जमाने के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो जितने भी स्टूडेंट है, पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, थोड़े बहुत बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बच्चे अगर वैकेशन में है, उनके पास फ्री टाइम है, तो उनको घर मत बिठाइए। दुनिया भर के एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर सब कुछ चलता है। आज यहां से बिल्कुल ज्यादा दूरी की मैं बात ना करूं, आप में से कई लोगों ने विजिट किया होगा, मकतबा जफरिया के अंदर ट्रेड फेयर होता है हर साल। अभी रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले खत्म हुआ। वहां पे जब मैं गया तो मैंने देखा कि हमारे जो शिया जाफरी समाज के बच्चे हैं उसमें से कोई भी किराने की दुकान लेके नहीं बैठा था, या कोई भी बंदा कपड़े नहीं बेच रहा था। जिसको जाके देखता हूं क्या है, सर मेरे पास IT प्रोडक्ट में बेच रहा हूं। किसी को देखा तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई इनोवेटिव फर्नीचर के साथ में कर रहा है। सर वो कौम जमाने के साथ चल रही है, मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो हम सबके लिए जरूरी है कि जमाना जो चल रहा है, जिस स्पीड में चल रहा है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके साथ हमें अपनी स्पीड मिलानी पड़ेगी। अब क्विक में लास्ट 5 मिनट में आज के हाँ, मैं बीच में जो बात बता रहा था, इस तरह के बहुत सारे फेयर होते हैं। मकतबा का मैंने एग्जाम्पल दिया, गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात बहुत बड़ा फेयर होता है, स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री एंट्री है। अगर बच्चे फ्री है उनको वहां पे भेजो। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पे दुनिया भर के बुक फेयर्स होते हैं, बिजनेस फेयर्स होते हैं, फिनटेक है, फाइनेंस टेक। गिफ्ट सिटी में आप जाइए एक बार, आप गिफ्ट सिटी में जाइएगा, आप एक राउंड मारिएगा, आपके बच्चों के लिए लर्निंग के लिए 50 चीजें वहां पे मौजूद है। तो सिर्फ डिग्री पे महदूद मत रखिए, उनको दुनिया दिखाइए, दुनिया कहाँ पे जा रही है, रिक्वायरमेंट क्या है, जमाना क्या चाहता है, वो भी आप दिखाइए। अब जैसे मैंने बताया, लास्ट 5 मिनट में 3 पॉइंट बताऊंगा जो आज के बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा। पॉइंट नंबर 1, करेक्ट इंफॉर्मेशन। एक जमाना था कि लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए राजा के टाइम पे ढोल बजाया जाता था। ढोल बजाया, अनाउंसमेंट कर दिया, एक जगह से इंफॉर्मेशन आती थी, सब मान लेते थे, हाँ राजा ने बोला कि ये तारीख को क्या बोलते हैं लगान उघराया जाएगा, लोगों ने मान लिया। फिर पोस्टर छपने लगे, फिर टीवी का एक चैनल आया, अभी 250-300 चैनल आ गए और सोशल मीडिया ने पूरा इंफॉर्मेशन के दौर को खत्म कर दिया। आज के बच्चे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि दुनिया भर की झूठी इंफॉर्मेशन में से सही इंफॉर्मेशन को बाहर निकाले।
क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपका कैरियर बनता है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपका एटीट्यूड डेवलप होता है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप अपनी जिंदगी के मुस्तकबिल को डिसाइड करते हो। और अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन गलत है तो आप अंधभक्त बन के रह जाओगे। तो मेहरबानी करके सही इंफॉर्मेशन जो है उसको खोजिए और उसी के ऊपर अपने मुस्तकबिल को डेवलप कीजिए। दूसरा जो चैलेंज मैंने देखा आज के बच्चों में, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेशेंस नहीं है बच्चों के अंदर, सब्र नहीं है, एंगर, बात बात में गुस्सा हो रहे हैं। कुरान शरीफ में 103 बार अल्लाह ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा है कि सब्र करो, पेशेंस रखो। हमारे पास पेशेंस नहीं है। अगर दुनियावी मैं एग्जांपल दूं ना, तो 1960 में दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। 10-10 साल के 100 बच्चे लेके आए, उनको एक रूम में बिठाया और उनको बोला कि आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए आपके सामने हम एक कैंडी रखते हैं, आपको ये कैंडी मतलब जो चॉकलेट वाला गोली आता है ना जो अट्रैक्टिव होता है, मार्शमैलो कैंडी बोलते हैं। कहा गया कि आपको सिर्फ 10 मिनट ये कैंडी नहीं खाना, अगर आपने नहीं खाई तो आप सबको 2-2 कैंडी मिलेगी। 10 मिनट के बाद वो लोग बाहर चले गए। 100 में से 10 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुरंत कैंडी खा लिया उन्होंने। 80 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कैंडी खाया नहीं लेकिन अपनी नजर नहीं हटा सके, वो उसी को देखते रहे, उसी को बार बार जबान पे चाट लिया फिर वापस रख दिया। आप कह सकते हो कि उन्होंने खाया नहीं लेकिन मन में उन्होंने कैंडी को खा लिया। और 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस कैंडी के सामने देखा भी नहीं, वो इधर उधर बुक देखने लगे, उसके सामने देखा नहीं। यूनिवर्सिटी ने सबका डेटा ले लिया, सबको 2-2 कैंडी देके जाने दिया। 30 साल बाद 1990 के अंदर उस यूनिवर्सिटी ने उन 100 लोगों को खोजा कि ये लोग अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं। ये पूरा स्टडी इंटरनेट पे मौजूद है, गूगल पे आप उसको पढ़ सकते हो। जब 30 साल बाद उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने देखा कि जो 10% बच्चे थे जिन्होंने 80% बच्चे थे जिन्होंने कैंडी खाई नहीं थी लेकिन मन में खा चुके थे, ध्यान नहीं हटा रहे थे, वो 80% बच्चे अपनी जिंदगी में मिडिल क्लास जिंदगी जी रहे थे। सारे लोगों को एक एक करके स्टडी किया, पूरा आपको इंटरनेट पे नाम के साथ डिटेल मिल जाएगा। वो मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे। 15-20 हजार पगार। 10-20 तारीख के बाद बच्चों ने बोला मम्मी बकरे का गोश्त पकाओ, ने बोले नहीं, पहली तारीख को पगार तेरा रब्बा का आएगा तब पकाएंगे। वो वाला मिडिल क्लास लाइफ। 10% बच्चे जिन्होंने कैंडी के सामने देखा भी नहीं था, वो अपनी जिंदगी के सबसे कामयाब दौर में थे। कोई किसी कंपनी का सीईओ था, कोई दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन था, कोई हॉलीवुड का हीरो था, कोई बिजनेसमैन था, सबसे कामयाब दौर में थे। और लास्ट वो 10% जिन्होंने कैंडी तुरंत खा ली थी, जिन्होंने बिल्कुल सब्र पेशेंस नहीं रखा, वो 10% अपनी जिंदगी के घटिया दौर से गुजर रहे थे। कोई भिखारी था, कोई जेल में था, कोई खूनी था, कोई मर गया था बीमारी से खराब दौर से गुजर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी ने नीचे लिखा बोल्ड लाइन में कि अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है तो पेशेंस, सब्र जो है वो आपके लिए सबसे बड़ा गुण होगा। और जिसके पास सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, उसका दुनिया में कामयाब होना बहुत मुश्किल है। और तीसरा आखिरी पॉइंट बता देता हूं, वो है एथिकल प्रैक्टिस। एथिकल प्रैक्टिस जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ईमानदारी। ये आज के दौर के यूथ में एक और बड़ा प्रॉब्लम है। अभी कुछ 2 महीने पहले मैं गांधीनगर में एक प्रोग्राम में शामिल था। मेरे साथ में एक और स्पीकर थे जो सरकारी नौकरी के फायदे गिनवा रहे थे। वो गवर्नमेंट के क्लास चलाते हैं। उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए। उन्होंने बोला कि सरकारी नौकरी का पावर कितना है कि अगर एक पुलिस वाला अपने हाथ में डंडा लेके रोड पे खड़ा हो जाए और एक 50 लाख वाली गाड़ी वाला कोई करोड़पति आदमी आ रहा है तो उसको भी वो डंडे की ताकत पे रोक सकता है और उसको रुकना पड़ेगा। फिर उसने दूसरा, इस पे लोगों ने ताली बजाई है बात पे कि भाई गवर्नमेंट का पावर कितना है। फिर उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि 2 दोस्त थे, एक की सरकारी नौकरी लग गई, एक ने किराने की दुकान खोल ली। किराने की दुकान वाले दोनों जब मिले तो किराने वाले ने बोला कि भाई तेरा पगार कितना है गवर्नमेंट जॉब में? उसने बोला 70,000। अरे बोले तूने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, 70,000 पगार? मैं सरकारी या किराने की दुकान पे 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ। तो सरकारी नौकरी वाला बोला तू भले 1 लाख कमाता लेकिन मेरी एक सिग्नेचर पे मैं तेरी दुकान बंद करवा सकता हूँ। तो ये 2 एग्जाम्पल हमारे भाई ने दिए कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब का पावर है। मेरी स्पीच में मैंने उनसे सॉरी बोलते हुए कहा कि सर मैं आपसे एग्री नहीं करता। अगर आपको सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि आप डंडे के पावर पे किसी ईमानदार आदमी को सड़क के बीच में रोकना चाहते हो या आप अपनी सिग्नेचर की जोर पे किसी का धंधा बंद करवाना चाहते हो तो खुदा के वास्ते सरकारी नौकरी मत करो। अगर ये इरादे से करते हो तो मजदूरी कर लो, लेकिन अनएथिकल बेईमानी वाली जॉब मत करो। तो आज के दौर का ये तीसरा सबसे बड़ा मसला है।
हलाल और हराम वाली जो बात है ना, उसका जो डिफरेंस है वो बहुत बारीक लाइन है जिसको लोगों ने निग्लेक्ट किया है। जाने गुजराती में कहवाय ने आंख आड़ा कान। एक बड़ा अच्छा मैंने कोटेशन बहुत पहले लिखा था, 2-3 साल पहले, कि कई बार ये होता है कि हम हराम के पैसे जेब में लेकर हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते हैं कि भाई हलाल गोश्त कहाँ मिलेगा, लेकिन जेब में जो पैसा है वो तो देख ले। तो मेरी स्पीच काफ़ी लंबी थी लेकिन मैंने बड़ा क्विक इसको शॉर्ट कर दिया है। 3 चीज़ों पे प्रैक्टिस कीजिए, अपने गुस्से को काबू में रखिए, सब्र कीजिए, एथिकल प्रैक्टिस ईमानदारी रखिए, और सही करेक्ट इंफॉर्मेशन जहाँ से है उसी को मानकर अपना एटीट्यूड, अपना मन बनाइए, अपना कैरियर बनाइए और उसी रास्ते पे चलिए। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत खूब मुगल साहब, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत जोरदार बात बताई। इनामનો ડ્રો છેલ્લો બાકી છે, ઇનામનો ડ્રો કરી લઈએ। જે પહેલો નંબર બાકી છે, પછી ઇન્શાઅલ્લાહ આભાર વિધિ થશે ને પછી દુઆ થશે, એટલે થોડી સબર કરી લો। સૌથી પહેલાં નદીમભાઈ 1-2 વાત કહેવા માગે છે પછી સાનિયા બેટી માટે, તો હું નદીમભાઈને માઇક આપું છું પહેલાં। अस्सलाम वालेकुम। ખરેખર એક નોંધ લેવા જેવી બાબત છે। હું ગોકુલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીમાં જ જોબ કરું છું। જે આપણે એક પ્રાઇઝ મળી માસ્ટર સાનિયા, હવે એ વાત કરીએ તો ઘરેથી કોલેજ અને કોલેજથી ઘરે બુરખામાં આવવું, સાથે સાથે નમાજ પઢવી જોહરની, આ બધી જ નોંધ હું તો લેતો જ તો, અને ઘણી બધી જે આપણી બહેનો હતી મુસ્લિમ બહેનો એમને કહેતો હતો। સાથે સાથે આની નોંધ જે ગોકુલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટીના ચેરમેન ને અત્યારના જે કેબિનેટ મિનિસ્ટર છે બલવંતસિંહ રાજપૂત સર અને તમામ આખી જે મેનેજમેન્ટ પણ નોંધ લે છે। એટલે ખરેખર એક આ મુબારકબાદી છે, અને આના ઉપરથી આપણને ઘણી એક શીખ લેવા પણ જેવી છે કે જેટલી પણ આપણી બેન બેટીઓ જે પણ યુનિવર્સિટીમાં જાય છે, આવી રીતે ભણે છે, તો ખરેખર આ બાબતથી નોંધ લઈને આપણે પણ આની નોંધ લઈ અને આના વિશે દરેકને સમજાવતા રહેવું જોઈએ કે આવી રીતે બુરખામાં જઈ અને સાથે સાથે સ્ટડી પણ થઈ શકે છે। અસ્સલામ વાલેકુમ। શુક્રિયા નદીમભાઈ। નદીમભાઈ બહુ સારી વાત કરી, આપણા માટે પ્રાઉડ જેવી વાત છે કે આપણી બેટી આ રીતે અભ્યાસ કરી રહી છે। થેન્ક યુ નદીમભાઈ અગેન। હું હવે યંગ કંપનીના જેકીને વિનંતી કરીશ કે આભાર વિધિ બતાવે શોર્ટમાં, ટાઈમ બહુ થઈ ગયો છે, અને પછી ઇન્શાલ્લાહ દુઆ કરી અને આપણે છૂટા પડીશું। એક લાસ્ટ ડ્રો છે 3 નંબરનો। છેલ્લી કૂપન છે, ખોલ દે ને તમે નિસારભાઈ। સાફિયા ઇનાયતુલ્લાભાઈ 6000। ઉજમા જહીરભાઈ નથી કોઈ હાજર। 2 તો આવી ગઈ। ખોલ ના। મહેમાન રૂમાના કે મહેમાન રૂમાના કે નથી નથી। મહેમાન અબ્દુલ વાહિદ હનીફભાઈ, અબ્દુલ વાહિદ હનીફભાઈ યંગ કમિટીના મેમ્બર। નંબર ખોટો છે। अस्सलाम वालेकुम। સૌથી પહેલાં અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરું છું કે આપણને સારો પ્રોગ્રામ આયોજન કરવાની તૌફીક આપી છે। હું પાલનપુર મહેમાન જમાત યંગ કમિટી તરફથી પ્રોગ્રામના ઇનામ મેળવેલ વિદ્યાર્થીનો હાફિઝે કુરાન કુરાન હાફિઝ આલિમે દીની ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી આપું છું। કોયલને કૂંચ વિના ન ચાલે, કોયલને કૂંચ વિના ન ચાલે, ભમરાને ગુંજન વિના ન ચાલે। તમે તો અમારા સ્નેહનીજનો છો સાહેબ,
તમારો આભાર કર્યા વિના અમને ન ચાલે. આજના સમારોહના અધ્યક્ષ થરાદી મહેમાન કાઉન્સિલના પ્રમુખ હાજી હનીફભાઈ ડીસાવાળા, પાલનપુર મહેમાન જમાતના પ્રમુખ ઇકબાલભાઈ સાહેબ તેમજ પધારેલ સર્વ મહેમાન પ્રોત્સાહિત કરવા માટે પ્રોગ્રામ કરવા માટે આવે અમારી સાથે ખભેથી ખભો મિલાવી તનતોડ મહેનત કરી અમને અને સમાજને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે તે બદલ તહે દિલથી પાલનપુર મહેમાન યંગ કમિટી તરફથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. શુક્રિયા જકી. હવે આપણે દુઆ કરશું છેલ્લે. જેમના બયાનથી આપણે શરૂ કરી દઉં એમનાથી હવે દુઆ કરાવીશું ઇન્શાલ્લાહ. બીજી ખાસ વિનંતી છે કે આવતીકાલે જલસો છે તો બધાએ જલસામાં ઇન્શાલ્લાહ ટાઈમથી હાજરી આપવી. મૌલાના જેસ સાહેબને દુઆ માટે ગુજારિશ કરું છું. साथ में दुआ पढ़ ले. सुभानल्लाह बिहम्दी सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अदा हिफ्ज़ कुरआन के लिए अल्लाह ने गम को चुना. अबू अम्मी को तो अल्लाह ताज कर पहनाएगा, जिसके आगे चाँद सूरज को गिरहन लग जाएगा. अबू अम्मी को तो अल्लाह ताज कर पहनाएगा, जिसके आगे चाँद सूरज को गिरहन लग जाएगा. शर्त बस ये न हो कौलो अमल में फासला. शर्त बस ये न हो कौलो अमल में फासला. हिफ्ज़ कुरआन के लिए अल्लाह ने तुमको चुना. शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहे करते अदा. हिफ्ज़ कुरआन के लिए अल्लाह ने गम को चुना. हिफ्ज़ कुरआन के अल्फाज तुमने कर दिए, नेमतों से दामन तुमने अपने हर दम भर दिए. हिफ्ज़ कुरआन के अल्फाज तुमने कर दिए, नेमतों से दामन तुमने अपने घर दम भर दिए. अब अमल की मोतिया चुनने का आया मरहला. अब अमल की मोतिया
मोतिया चुनने का आया मरहला हिफ्ज़ कुरआन के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहे करते अदा हिफ्ज़ कुरआन के लिए अल्लाह ने हमको चुना। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते अदा हिफ्ज़ कुरआन के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहे करते अदा हिफ्ज़ कुरआन के लिए अल्लाह ने हमको चुना। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, पेश करता हूँ तमन्नाए मोहब्बत का सलाम, पेश करता हूँ तमन्नाए मोहब्बत का सलाम, अपने अहबाब को देता हूँ मुसर्रत का पयाम। मुहतरम सामिईन, मुकर्रम हाज़रीन, बिरादरान सालिहीन, मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन और इस प्रोग्राम के हज़रात मुंतज़िमीन, गेसुए शब की तारीकियों में मौसम बहार की खुश रंग लहलहाती हुई शादबियों के साथ आप हज़रात का जलसे में आना मुबारक। हज़रात, हम अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं कि हमारे मेहमान मुकर्रम और तशरीफ़ लाने वाले सामिईन की आमद हमारे लिए बाइस फ़रहत और शादमानी है, जिसका हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते कि आपने अपनी आमद के ज़रिए जलसे को ज़ीनत बख्शी, जिस पर हमारे एहसास की दुनिया रोशन हो रही है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर शक्ल में आपके सामने पेश करें, जिसमें मासूम बच्चों की तिलावत कलाम पाक, पुरमग़ज़ खिताबत, नात व नज़्म का पुरकैफ व पुरबहार संगम है, तो दिलचस्प और नसीहत आमेज़ मुकालमा हो, जिससे आपकी रूह की तस्कीन का सामान फराहम हो। लिहाजा हमने इस बज़्म को ज़ाहिरी और मानवी दोनों हैसियतों से बेहतर बनाने की कोशिश और सई की है, जिसको कामयाबी के साथ इख्तिताम पर पहुंचाने के लिए हमें आपकी और आपके ताउन की ज़रूरत है। बगैर आपके ताउन के हम इस प्रोग्राम की मंजिल तय नहीं कर सकते। नीज़ हम अपने मेहमान खुसूसी जनाब हज़रत अक़दस मौलाना हबीबुल्लाह साहब गठामनी दाम बरकातहू के भी बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना हमा जिहती ताउन देकर हमारी दावत को कबूल फरमाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप हजरात आखिर तक हमारे दोष बदोश रहकर जलसे को कामयाब करने की सही और कोशिश करेंगे। मोहतरम बुजुर्गों और पुरजोश नौजवानों और पर्दा नशीन ख़वातीन, दीगर सीरत के जलसों और दीनी इज्तिमाओं की तरह आज का ये जलसा भी अपना एक ख़ास मकाम रखता है और ये उसूल मुसल्लम है कि हर बावकार शय के लिए बाकमाल शख्सियत अजीमुल मर्तबत इंसान कायद होना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, कारवां के लिए बस मुख्तदा चाहिए। उसी के साथ हमारे अकाबरीन दीन व मिल्लत का यह आईन अमल रहा है कि हर महफिल, हर जलसा और हर बज़्म के आगाज़ से कबल एक ऐसी जामे और उल-अज़्म ज़ात का इंतखाब कर लिया करते थे जिसके तहत निगरानी और क़ियादत और सियादत में वो प्रोग्राम हुस्न इंतज़ाम के साथ इब्तिदा से इंतहा की सरहद को अबूर कर जाए। हम भी अपने बुजुर्गों का इत्तिबा करते हुए क़ब्ल अज़ी के इजलास का आगाज़ हो, उसकी सदारत के लिए एक ऐसी शख्सियत जो इल्म व अमल, फज़ल व कमाल का हसीन संगम है, जहाँ से तबलीग व इरशाद और सलाह व इस्लाह के तेज़ धारे उबलते हैं, उससे मेरी मुराद जामे इल्म व इरफान
शहनशाह फ़िक्र व तदब्बुर उस्ताद मोहतरम हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब गठामनी दामत बरकातुहूम हैं, जिनकी सदारत पर हम फ़रहत व इंबिसात महसूस करते हैं। सदर ज़ीवकार और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, रोज़े रोशन की तरह आया है कि आसमान की रफ़ात व बुलंदी ज़मीन पर, दीन की रोशनी रात की तारीकियों पर, आफताब की आलमताबी माह शब की चांदनी पर, चांद की ज़ियापाशी सितारों की दरख्शानी पर, गुलाब का हुस्न चंपा पर और रात रानी की खुशबू चमेली पर बदरजहां गालिब है। आइन इसी तरह मखलूक़ात में सबसे अशरफ, अरब व अजम पर फाइक, खुलासाए कायनात, ताजदार मदीना, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत तमाम नबियों पर और आपको अता किए गए लाजवाल मुअजिज़ा कुरान मजीद की फजीलत तमाम कलामों पर गालिब है। जैसा कि हदीस कुदसी है, फज़्लु कलामिल्लाह अला साइरिल कलाम कफ़ज़्लिल्लाहि अला खल्क़ि। और अफजल क्यों न हो जबकि उसका नाजिल कुनिंदा वाजिबुल वजूद है, जो तमाम सिफात कमालिया का मुस्तजमा है, जिसका कासिद सय्यदुल मलाइका जिब्राइल है। और वो कलाम इस ज़ात गिरामी पर नाजिल हुआ जो बाइस कुन फ़का है। फिर वो कलाम अजीम कैसे न होगा जिसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो रूहुल अमीन, जिस जात पर उतारा गया वो रसूल अमीन, जिस शहर में उतारा गया वो बलद अमीन, जिस माह में उतारा गया वो महीनों में अफजल, जिस रात में उतारा गया वो 1000 महीनों से अफजल। जब इन तमाम खुसूसियात का हामिल कुरान मजीद ही है, तो फिर क्यों न हम उस कुरान मुक़द्दस से अपनी महफिल का आगाज करें, जिसने वहशत व जलालत के अंधेरों में इल्म व इरफान के दिए रोशन कर दिए, जिसने अदल व इंसाफ का सिक्का चहारदांगे आलम में बिठा दिया, फसाहत व बलागत के शहसवारों को फ़क़्र बिसूरत मिन मिथली का चैलेंज करके ज़ेर कर दिया, जिसने जुमूद व तअत्तुल, इंतिशार व इख्तिलाफ को दूर करके हिकमत व दानिश के ज़ाबते दिए। उसी कुरान मजीद की तिलावत बासआदत के लिए मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म ताहा इब्न इदरीस भाई को दावत देता हूँ कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज फरमाए। गुंचे हैं, गुल है, सब्जा है, अबर बहार है। गुंचे हैं, गुल है, सब्जा है, अबर बहार है। सब जमा हो चुके हैं, तेरा इंतजार है।